अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम रहमान अजहर है एंड आई वर्क एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर सेंटर फॉर लॉ एंड सिक्योरिटी। और आज का जो वेबिनार है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली इंडस वाटर ट्रीटी एंड हाउ डाटा शेयरिंग और इससे जो जुड़े हुए मामला हैं पाकिस्तान की जो फ्लड मैनेजमेंट है उसको किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। एंड वी हैव वेरी टू वेरी एस्टीम्ड गेस्ट विद अस, डॉक्टर अंजुम रशीद। शी इज अ क्लाइमेट एक्सपर्ट एनवायरमेंटलिस्ट working with IRS, or Dr. Khalid Shafi, who is also an environment security expert, climate security expert, जो कि working with ISRA. So मैं थोड़ा सा जरा thank you so much दोनों मेहमानों का. I'll start with Dr. Anjum Rashid first. Dr. Shaba, just to get an overview, पाकिस्तान की जो flood management है, how do you think it is impacted या जुड़ी हुई है विद इंडस वाटर ट्रीटी, और ये जो पूरे इंडस बेसिन की इंडस रिवर सिस्टम्स की जो मैनेजमेंट होती है उसके साथ? Well, thank you for inviting me. Actually, I will not say that our flood management system is linked to the Indus Water Treaty. Management system is not linked the way it should be linked to ensure the to managing and reducing the disasters over here. However, I would like to say that it's linked to the disasters and floods which are happening frequently in Pakistan, because Indus Water Treaty, actually it's the which was signed in 1960. Actually, it's the world's most enduring water treaty, and I mean it helps us if we get timely data from upstream data, hydrometeorological data. Then it will help our disaster management authorities to predict the floods, forecast the floods, and to manage accordingly. So it's important in that sense that it then floods can be managed. However, now it depends on the authorities if they use it accurately and timely, and then they manage accordingly as well, because तो we have ये डेटा जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, जरा आप ये भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी जरा अगर इस पे भी आप बात कर सके कि जो अपस्ट्रीम से आने वाला डेटा है वाटर फ्लोज का एंड ऑल रिलेटेड डेटा, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, सो हाउ डू यू थिंक दैट रिलेट्स विद फ्लड मैनेजमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट? it's very important, because as you know that three of the western rivers, actually Pakistan has rights over the western rivers like Indus, Jhelum, and Chenab. However, the other three have been given to the India, and from these rivers, actually the other party, if India stores just pre-flooding storage of the water, sometimes it can be done intentionally, like they store it and release it abruptly, so that could cause floods downstream, right? So if they keep sharing with us, and especially during the monsoon season, it's very important that they keep on sharing with us the situation upstream, like how much, if there are rains, what's the reservoir level over there, the storage capacity, and then when will it be released. So that, and then it under the Indus Water Treaty, actually there is restriction on India for specific हाँ. design of the storage reservoirs, so that it cannot rapidly release the water. However, India keeps on violating during construction of almost all major hydropower plants over there. So Right. release, this information is actually very important. ठीक है डॉक्टर खालिद साहब, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा उसके बाद एक सडनली इंडस वाटर ट्रीटी की बात होने लगी। उससे पहले भी बात होती रही है वेदर इंडिया इज यूजिंग वाटर एज ए वेपन और नॉट। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? इज इंडिया रियली यूजिंग, पहले पानी रोकने की बात की जाती है, अभी हमने फ्लड में देखा तो पानी जो है वो भेजने की जो है वो बात की जा रही है। सो व्हाट इज दिस हैपनिंग? Before coming directly to your answer, आपने ज्योग्राफी की बात की, I would say that yes, देखें जियो पॉलिटिक्स थी, जियो स्ट्रेटजी थी, जियो इकोनॉमिक्स थी, और आजकल जियो इन्वायरमेंट की बात हो रही है। और आपने बात की डाटा की, वो बड़ा अच्छा, इट इज सेड दैट एनीथिंग व्हिच इज मेजरेबल इज मैनेजेबल। तो दिस इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा। जो आपने बात की, यस आई थिंक वी हैव एक वी हैड मई 2025, और उससे पहले ही इंडिया ने अप्रैल में से वाटर ट्रीटी को रिक्वेट किया, विच ही कैनॉट डू बिकॉज इट इज ए मटेरियल ब्रीच ऑफ एन कन्वेंशन ऑफ लॉ। उसमें आर्टिकल 60B और आर्टिकल 62B है। तो इंडिया इज डेफिनेटली वेपनाइजिंग वाटर।
2 weeks before I was at a seminar in Denmark. इसमें यही था third pole और ecological security, and exactly said that better water should not ever be weaponized. We have, आप देखें हमारी Mekong Treaty है, which is in South Asia, China, Thailand, Laos, all these countries. We have so many treaties, and जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, this was the most resilient water treaties in 1960. लेकिन इंडिया इज अभी अपना एस्केलेशन लेवल हाई कर रहा है और बिल्कुल जो है इस ट्रीटी को एज ए वेपन यूज कर रहा है, एंड स्पेशली जिस तरह नाउ द फ्लड्स आर देयर, द मॉनसून इज देयर, तो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ए एनिमी हु हैज बीन डिफीटेड इन फ्रस्ट्रेशन इट इज डूइंग. ही हैड ऑप्शंस. इंडिया देखा जाए तो अगर वाटर जो है पंजाब से अपने राजस्थान में फ्लो कर सकता था, दैट वाज एन ऑप्शन विच, बट इट इज डाइवर्टिंग इट टुवर्ड्स ईस्ट. इंडस वाटर कमीशन के बजाय डिप्लोमेटिक चैनल विद जस्ट 2 days ऑफ information, and those are diplomats, not the technical persons. So there are a lot many issues in it. Yes. लेकिन अब अभी ये दो चीजें हुई हैं. एक तो जाहिर बात है जो इंडिया के एंड से उन्होंने इंडस वाटर टीटी की जगह और जो उसका जो मैकेनिज्म था इंडस वाटर कमीशन की जगह उन्होंने नोटिफाई करना शुरू कर दिया थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स. अच्छा, एक तो मैं उसकी रीजन आपसे जो है वो पूछना चाहता हूँ, उसके पीछे मोटिव जो है वो क्या हो सकता है. एंड सेकेंडली, बहुत सारे जो आपने वाटर डाइवर्जन की बात की, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बचाना जो है वो इट बिकम्स प्रायोरिटी फॉर एनी जो अथॉरिटी होता है. तो चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान हो, जब भी पानी एक लेवल से ऊपर चला जाएगा दे विल ओपन द स्पिलवेज और वो दे लेट द वाटर फ्लो. So do you actually think India had other option as well which they did not utilize in this case? Yes, definitely. देखें, there are two dimensions to it. आपने Indus Water Treaty की बात की. There's an internal dimension. We can talk on it later. And there's the second external dimension. The second external dimension में what India could have done, first of all, जो Indus Waters Commission है, उसके जरिए intimation should have been there. And it should have been exact data, not vague data, exact precise data. क्योंकि वहाँ टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं. These are diplomatic is just a, I would say just passing एक वो डाकने वाला काम किया है उन्होंने. हाँ. वन. लेकिन देखें, अगर आप इफ वी सी, ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया में इंडिया का पंजाब भी हुआ है. दे हैव देयर जो उनका नेटवर्क है राजस्थान में, दे कुड हैव डाइवर्टेड द वाटर ओवर देयर ऑन दीस साइड्स आल्सो. दैट इज आल्सो एन ऑप्शन. एंड आई जस्ट, बल्कि मैंने आईआरएस में एक लेक्चर दिया था, क्लाइमेट विजन फॉर साउथ एशिया. तो इंडस इज वन. अगर हम साउथ एशिया कंट्रीज देखें, इंडस our Ganges in India and Brahmaputra in Bangladesh. So this is a complete South Asian, and these connections are linked. Climate change is a global phenomena, but the solutions can be very conveniently founded on regional basis. और उसमें cooperation और नियत की बहुत importance, intent is very important. राइट. अच्छा अंजुम साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त एक सिचुएशन अभी है, नॉर्मली हमने देखा है कि क्लाइमेट एक ऐसी चीज है विच कैन ब्रिंग टू कंट्रीज टुगेदर. हमने स्मॉग के इशू पे भी देखा कि कहीं ना कहीं डिस्पाइट ऑल द हॉस्टिलिटीज एंड ऑल द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो एग्जिस्ट करती है, हमने कहा कि मिलकर जो है वो बात होनी चाहिए. कुछ मैसेजेस एक्सचेंज भी हुए, बट जारी बात है उतना नहीं है. Why do you think in terms of for water it's such a sensitive issue कि इसको as a weapon भी यूज किया जा रहा है, कोई इस पे बात भी नहीं कर रहा, हालांकि it should bring और जो flood जैसी situations हैं, in order to avoid that they should bring these countries together और help them cooperate with each other. अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा बात करूंगी. आपके पहले पॉइंट पे भी मैं कहना चाहूंगी कि अभी चूंकि ऑल्दो वी अंडरस्टैंड दैट दिस इंडस वाटर ट्रीटी का जो है परमानेंट इंडस कमीशन, दैट्स द राइट वे टू कम्युनिकेट एक्चुअली विद पाकिस्तान अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है. बट आई थिंक दैट अंडर अ सिचुएशन जहाँ पे हमें एक लाइफ गार्ड मतलब लाइवलीहुड को और डैमेजेस की रिडक्शन के लिए, आई थिंक इन सच क्रूशियल सिचुएशन आई थिंक वी शुड regard India's communication, even it was on humanitarian grounds, because as you know हमारा आजकल के हालात आपस में काफी ज्यादा खराब थे, but at least they communicated, right? So we should I think we should maintain multiple channels of communication with them, और उसमें फिर gradually हमें एक इतना we should develop that circumstances where we should
हैव एन अग्रीमेंट जहाँ पे डेटा शेयरिंग, एक तो हमारा बायलैटरल अग्रीमेंट है इंडस वाटर ट्रीटी, लेकिन अंडर दैट अग्रीमेंट एक्चुअली इंडिया के एक्चुअली चाइना के साथ भी हैं, बाकी कंट्रीज के साथ भी हैं, साउथ एशियन कंट्रीज के साथ, उसमें डेटा शेयरिंग के सेपरेट एमओयू साइन किए जा सकते हैं, जिसमें एक रिक्वायरमेंट हो कि आपने मेरा ख्याल है मॉनसून वो के कहीं ना दौरान। कहीं यही तो, डॉक्टर साहब इसमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, यही तो इंडिया कहीं ना कहीं पर चाहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के मैकेनिज्म को वो यूज करने की बजाय पाकिस्तान के मैंने साथ एक इनफॉर्मल सा मैकेनिज्म रखे, ताकि इंडस वाटर ट्रीटी को नल एंड वॉइड जो है वो ऐसे या फिर जो उसकी अबेंस जो है वो जस्टिफाई जो है वो हो सके। उसने इसीलिए बिकॉज 2010 से 25 तक डेटा शेयरिंग चल रही थी, अब सडनली अप्रैल से वो नहीं हो रही, और आई थिंक इट वाज ऑल आई प्लान कि बिलीव आपने पहले डेटा, 2014 से शायद जो है वो जो डाटा शेयरिंग है वो बहुत कम है 2014 से। लेकिन ये कि 10 से स्टार्ट हो, एटलीस्ट इट वाज बेटर देन बिफोर, जी लेकिन जी। उस तरह से नहीं थी जैसे होना चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट को भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसे फोरम्स यूज करने चाहिए थे, कंसिडरिंग द, बिकॉज दिस इज नाउ दे आर वेपनाइजिंग दिस वाटर, राइट। तो हमें यूएन जनरल असेंबली में इस इशू को रेज करना चाहिए था, हमें एक आपसे मैं, यूएन वाटर कोर्स कन्वेंशन है 97, which जी Pakistan has neither signed, not Pakistan has is not a signatory, India is also not a signatory। अगर हम उसको साइन कर लेते हैं तो उसकी उसके अंडर एक्चुअली दैट इंटरनेशनल कन्वेंशन इट फोस्टर्स योर एग्जिस्टिंग बायलैटरल अग्रीमेंट्स, तो उसमें वो आपको यूएन भी हेल्प करता है। फिर ओके अब और इंडिया जो है इसको कर नहीं सकता, आई मीन यूनिलैटरली इसको टर्मिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया हैज साइंड दिस वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज। पाकिस्तान से सिग्नेटरी है, पाकिस्तान ने तो रेटिफाई किया हुआ है, बट इंडिया हैज ओनली साइंड। बट इवन देन वन अंडर वन ऑफ द क्लॉज ऑफ दैट कन्वेंशन, any party who has signed cannot go राइट। against the objectives of that convention, और ठीक। उसके अकॉर्डिंगली इस बायलैटरल अग्रीमेंट को इंडिया नहीं कर सकता टर्मिनेट, तो वो भी राइट। एक एस्पेक्ट है। राइट। और मैं जरा उस पे भी जरा कोऑपरेशन वाले पॉइंट पे भी आई विल हाँ जी, लाइक टू हेयर मोर थॉट्स फ्रॉम यू, लेकिन पहले मैं डॉक्टर खालिद साहब, ये जो वाटर सिक्योरिटी है ये कितनी सिग्निफिकेंट हो जाती है इस करंट एनवायरनमेंट में, और क्या हमें बेसिकली आगे क्या करने की जरूरत है इसके लिए? बिकॉज हम 2 महीने पहले बात कर रहे थे कि पानी जो है वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और 2 महीने बाद हम बात कर रहे हैं कि अब इतना ज्यादा पानी आ गया कि इसको मैनेज कैसे करना है। सो हाउ डू यू थिंक वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स as far as this climate and water security is concerned? राइट रेमान, आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। देखिए, जिस तरह आई सेड, दो चीजें हैं। एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल तो इंडिया है, वी हैव लिमिटेड कंट्रोल, लेकिन हमारे अपने इंटरनल वल्नरेबिलिटीज हैं जो हम काफी हद तक कुछ कर सकते हैं। अगर हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान देख लें, विच वाज 2022 में आई थी और अगले साल 2022 2026 तक वैलिड है, तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इज द थर्ड मोस्ट वाटर स्केर्स कंट्री। तो इन फ्लड्स के मानसून सीजन को निकाल दें तो हमारा पानी बहुत ज्यादा जाया हो रहा है। ऑन एन एवरेज हम 29 टू 30 मिलियन एकड़ फीट पानी हमारा समुद्र में जाता है, वेर इज 10 इज इनफ टू सी चेक द सी इंट्रूजन। हमें ना स्टेट एज वेल एज सोसाइटी बोथ नीड टू टेक एक्शन। Right. व्हाट डज द स्टेट नीड टू डू? स्टेट जो है ना, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में लिख दी है, लेकिन क्या की कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिसीज बन रही हैं? जो Hmm. डैम्स हैं, स्टोरेज वन, जो एम्बैंकमेंट्स हैं, जो अभी नई टेक्नोलॉजी, ड्रिप टेक्नोलॉजी या पाइप टेक्नोलॉजी, वाटर इवेपोरेशन होता है, दैट क्या देखें, अभी इट इज अनएथिकल। एक पर्सन, आप अगर 2 बाल्टी इस्तेमाल पानी करते हैं, मैं 50 करता हूँ, इट्स क्वाइट इलॉजिकल। इट शुड बी जी। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी उस तरह से। इसी Hmm. तरह हमारे मैसेज को भी समझना चाहिए। हम अक्सर एक जुमला बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी। We think sustainability is not that we have inherited these resources and what is a big resource from our fathers or grandfathers, but we have borrowed it from our grandchildren. That Right. realization is not there. Right. तो लोग अभी भी पानी जो है, आई एम श्योर आपने भी बहता हुआ पानी या यूज Hmm. वाटर लाइक इट इज, whereas I can go into the technical details कि हम कितना मिलियन एकड़ फीट But पानी the point प्रोड्यूस is that करते we हैं, need to set कितना हम यूज करते हैं। our own house in order पहले, जो है वो हम, आई मीन That एक्सटर्नल is, इश्यूज yeah, हैं, लेकिन that is, इंटरनली भी वी नीड टू डू बेटर वाटर मैनेजमेंट। जी हाँ, policies need to turn into actionable things और which produce results for the people. और वेरी क्विकली, ये जो डैम वाली डिबेट चल रही है, योर थॉट्स ऑन दिस? डैम्स की जरूरत है हमें? देखिए जी, मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, इट वुड सेट द ठीक। कॉन्टेक्स्ट क्लियर। रिवर नाइल पे ठीक। असवन डैम है, व्हिच इज वेरी वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम। तो इजिप्ट एंड
Sudan, they are not only sharing water, they are sharing electricity. But unfortunately, in our case, you understand what is Talabag डैम के साथ क्या हुआ. हाँ, और जो मैंने आपको बताया, हम एवरेज 29-30 मिलियन एकड़ फीट पानी जाया करते हैं. तरबिला मंगला की कैपेसिटी देखें 5.56 है, तो यानी कि 5 टाइम्स वो फुल, इट इज फुल, ना हम पानी right. जाया करते हैं.